میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ بہت ہی بڑا احسان اور فضل فرمایا ہے۔ انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری انعامات و اکرامات کی بارش کر رکھا ہے، اور ان انعامات سے نوازنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس انعامات کو عمل میں لانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا اندر زبان کا دے رکھا ہے۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ بے بہا بے شمار قیمتی تحفہ ہے، بہت ہی عظیم تحفہ ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس زبان نہ ہو تو پھر وہ اپنے خواہشات، اپنے دل کی باتوں کا اظہار، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو تو ان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو وہ لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتا ہے۔ اگر کسی صاحب کے پاس زبان نہ ہو تو اس زبان نہ ہونے کے بنا پر اچھا خاصا جو دینی پیغام ہے ان پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اس زبان سے غلط چیزوں کو نہ بولنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر، خطبہ کے اندر میں نے جو حدیث پڑھا ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اگر تم اچھی بات کر سکتے ہو تو اچھی بات کرو، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا یہ کہ تم خاموشی اختیار کرو۔ یعنی یہ کہ زبان سے تم اچھی باتوں کا اظہار کرو، لوگوں کو غلط باتوں سے روکنے کی کوشش کرو، لیکن اس زبان کے ذریعے غلط باتوں کو اپنے زبان کے اوپر مت لاؤ، اس زبان کو غلط چیزوں کے لیے استعمال نہ کرو۔ میرے عزیز دوست، حدیث پاک کے اندر منع فرمایا گیا ہے۔ یہ زبان انسان کے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لاکھوں یا کروڑوں روپے دے کر آپ سے کہے کہ آپ اپنی زبان میرے حوالے کر دیں، میرے عزیز دوستو، آپ اپنی زبان ان کو دینے کے لیے گوارا نہیں کریں گے۔ معلوم یہ چلا کہ زبان بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو تو کھانے پینے کی مختلف اشیاء ہیں، ان کا مزہ نہیں حاصل کر سکتا ہے، ان نعمتوں سے لذت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ مختلف قسم کی مٹھائیاں ہوتی ہیں، اگر زبان نہ ہو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم مٹھائی کھا رہے ہیں یا کچھ اور کھا رہے ہیں۔ مختلف قسم کے کھانے ہیں، اس کھانے کو آپ استعمال کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو کھانے کا سواد معلوم نہیں کر سکتا ہے کہ آخر اس کا ذائقہ کیسا ہے، میٹھا ہے یا نمکین ہے، زیادہ ذائقہ دار ہے یا ایک ذائقہ دار نہیں ہے، اس کا احساس آپ زبانی کے ذریعے کرتے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ زبان ایک قیمتی سرمایہ ہے، لیکن اس کو اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے، غلط باتوں سے ان کو اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ زبان انسان کے جسم کے لیے ایسا ہی ہے، زبان انسان
इंसान के जिस्म के लिए ऐसा ही है जैसा किसी चीज का जो इंजन होता है, इंजन के अंदर मुख्तलिफ पार्ट और पुर्जे होते हैं, कोई एक पुर्जा खराब होता है जिसकी वजह से वो इंजन काम करना बंद कर देता है। इसी तरीके से इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आज़ा है जो पार्ट पुर्जे के काम आते हैं, उसी में से एक जुबान है। जुबान की अहमियत ये है कि अगर कोई शख्स के पास जुबान अगर सही नहीं हो, वो सही तरीके जुबान नहीं हो, तो उसके जिस्म के दूसरे आज़ा जो है वो सही सलामत काम नहीं कर सकता है। इसका अंदाजा अपने गांव और अपने इलाके के अंदर ले सकते हैं, कर सकते हैं। जो गूंगा होता है, आप देखिएगा सच मानों में वो किसी काबिल नहीं होता है, वो अच्छा खासा कोई काम अंजाम नहीं दे सकता है, वो अच्छे तरीके से आपकी बात को नहीं समझ सकता है, वो अच्छे अंदाज से किसी को कुछ बता नहीं सकता है, कुछ समझा नहीं सकता है। क्यों नहीं समझा सकता है? क्योंकि ये ज़ुबान की दौलत से महरूम है। मेरे अजीज दोस्तों, जुबान से हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ को बहुत ही सोच और समझ करके बोलना चाहिए। हर हर्फ के ऊपर मुझे गौर करना चाहिए कि मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये इस्तेमाल करना सही है या नहीं। अगर आपके लिए उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना सही नहीं है तो नहीं निकालिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कोई लफ्ज़ जो कोई शख्स निकालता है, अपने मुंह से निकालता है, तो उस लफ्ज़ को फरिश्ते लिख देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फरिश्ते मुकर्रर है, उसकी बातों को लिखते हैं, ताकि कल क़यामत के दिन इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से ये न समझ में आए कि ये हक कह रहा था या बातिल कह रहा था। उसका फैसला करने के लिए कि ये गलत कह रहा है या सही कह रहा है, फरिश्ता उसके ऊपर मुकर्रर है और हर बात को लिख रहा है। इसीलिए हर इंसान को हर बात बहुत ही सोच समझ करके बोलना चाहिए, बहुत ही गौर फिक्र करने के बाद बोलना चाहिए। यूं ही अगर बोलते हैं, फरिश्ता मुकर्रर है, अगर सही बात बोलता है तो मेरे अजीज दोस्तों, हदीस पाक के अंदर आया है, एक शख्स अगर एक बार सिर्फ सुभान अल्लाह कहता है तो सुभान अल्लाह के नतीजे में मीज़ान अमल का आधा हिस्सा पूरा हो जाता है। इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर आया है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, कि अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेता है वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मालूम ये चला कि इस जुबान के जरिए अगर कोई शख्स अच्छी बात करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के दुनिया को भी उजागर करते हैं, दुनिया को भी सवार देते हैं, दुनिया को भी सजा देते हैं और आखिरत को भी सजाते हैं। आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन बदला देंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जुबान, इस जुबान के जरिए एक इंसान गैर इस्लाम से इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। कोई शख्स जिंदगी भर गुनाह किया है, जिंदगी भर कुफ्र शिर्क किया है, जिंदगी भर बुतों की परस्तिश किया है, लेकिन ऐसा शख्स अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो मेरे अजीज दोस्तों ऐसा शख्स कामयाब हो जाता है। ये भी एक जुबान ही की वजह से होता है। इसी तरीके से एक औरत जिसको देखना जायज नहीं होता है, जिससे बात करना जायज नहीं होता है, नाजायज और हराम होता है, उससे किसी तरह की कोई सी बात करना जिसकी शरीयत के अंदर गुंजाइश नहीं हो, उसकी गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जुबान के जरिए सिर्फ इस बात का इकरार कर लिया जाता है कि मैंने उससे निकाह किया। इतनी ही लफ्ज की वजह से ऐसे शख्स के लिए वो औरत जो हमेशा के लिए, वो औरत जो इसके लिए जिससे बात करना इस शख्स के लिए जायज नहीं था, नाजायज था, गुनाह था, लेकिन सिर्फ ये इकरार कर लेने की वजह से कि मैंने उससे निकाह किया, मेरे अजीज दोस्तों बात करना जायज हो जाता है, गपशप करना जायज हो जाता है। मालूम ये चला कि जुबान के जरिए अच्छे कामों को भी अंजाम दिया जा सकता है, बुरे कामों को भी अंजाम दिया जा सकता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छी बात
بات اگر زبان سے بولتے ہیں، اچھی باتوں کی ادائیگی کرتے ہیں، تو ایسے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ رکھا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بچاتا ہے۔ زبان ہی کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کا دوست بن جاتا ہے، اور زبان ہی کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ زبان ہی کے ذریعے ایک شخص قاتل ہو جاتا ہے۔ زبانے کے ذریعے ایک شخص ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ محبت اور پیار اور دوستی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ زبان کی بہت ہی اہمیت ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ زبان کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ایک بہت ہی بڑے عالم تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز اس کے پیچھے بھی ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ عالم وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے سامنے سے اس کے پیچھے ایک شخص جو نمازی ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ بزرگ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہٹتے ہیں، پیچھے والے جو نمازی ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنے بڑے بزرگ سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنے بڑے مفکر اور محدثین سمجھتے ہیں، لیکن آپ اتنی بڑی غلطی کر گئے ہیں کہ میرے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سے آپ گزر گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ شخص اس طریقے سے غصہ ہوتا ہے، وہ بزرگ شخص خاموشی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں۔ دونوں جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، وہ بزرگ وہ عالم شخص وہ سامنے والے عبادت گزار سے پوچھتے ہیں، اس نمازی سے پوچھتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس طریقے سے وہ عالم اس شخص سے مسئلہ بیان کرتا ہے کہ دیکھیے، سامنے سے گزرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور ہٹ جانا یعنی ہٹنا یہ الگ چیز ہے۔ گزرنا اسے کہتے ہیں، اس طرف سے اس طرف کوئی شخص گزر رہا ہے، جا رہا ہے، تو اسے گزرنا کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو مرور کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر مرور کا ہی لفظ آیا ہے کہ مرور منع ہے، یہاں سے یہاں، اس طرف سے اس طرف جانا، یہ گزرنا ہوا۔ اور اگر میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے سامنے اور وہاں سے اگر میں ہٹ گیا ہوں تو یہ ہٹنا ہوا، یہ گزرنا نہیں ہوا۔ اور ہٹنے کے سلسلے میں کوئی وعید نہیں ہے، بلکہ گزرنے کے سلسلے میں وعید ہے۔ اور میں آپ کے سامنے سے گزرا نہیں ہوں بلکہ آپ کے سامنے سے ہٹا ہوں، اس لیے میں اس وعید کا مستحق نہیں ہوں اور میں گناہگار نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ نمازی شخص بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے اپنی باتوں پہ، اس حضرت سے معافی تلافی کرتا ہے اور ان کی باتوں کو مانتے ہوئے ان سے اچھے انداز سے پیش آتا ہے، اچھے طریقے سے بات چیت کرتا ہے۔ اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھے انداز سے زبان کے ذریعے اگر کوئی شخص کسی سے بات کرتا ہے تو دشمن کو بھی دوست بنا لے گا۔ وہ شخص اس بزرگ پہ بہت ہی خفا ہوئے تھے، بہت ہی غصہ ہوئے تھے، لیکن وہ عالم شخص وہ بزرگ شخص اس نمازی سے پیار و محبت کے ذریعے بات کرتے ہیں، ان کو اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ سمجھانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی باتوں کی وجہ سے اس شخص سے معافی تلافی کر لیتا ہے۔ اس لیے زبان کو اچھی جگہوں پہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے متعلق جب بات آ گئی تو اس کے سلسلے میں کتابوں کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، یا یہ کہ کسی جنگل کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، یا کسی بڑے کمرے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اس مسجد
की लंबाई या उस कमरे की लंबाई अगर 60 फीट है तो 60 फीट उस मस्जिद की होने की वजह से 3 सफ आगे से अगर कोई शख्स गुजर रहा है तो गुनहगार नहीं होगा। अगर 3 सफ से पहले से गुजर रहा है तो ऐसा शख्स गुनहगार होगा। 3 सफ से आगे से अगर गुजर रहा है तो ऐसा शख्स गुनहगार नहीं होगा। 60 फीट लंबी मस्जिद होनी जरूरी है। अगर उससे कम है तो वो बड़ी मस्जिद में शामिल नहीं है, वो बड़ा कमरा में शामिल नहीं है। और जब वो बड़ा कमरा में शामिल नहीं है, वो बड़ी मस्जिद नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि उसके सामने से गुजरना मना है। उसके सामने से आप नहीं गुजर सकते हैं। उसके सामने से गुजरने के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद या वो कमरा कम अज कम 60 फीट लंबी हो। मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि जुबान की हिफाजत जरूरी है। जुबान को अच्छी चीजों के अंदर इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना यही जुबान आपको जहन्नम की तरफ भी ले जा सकती है, जन्नत की तरफ भी ले जा सकती है। यही जुबान दोस्ती का बाइस भी बन सकती है, दुश्मनी का बाइस भी बन सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, आप अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए। एक बादशाह थे, वो बादशाह जब ज़ईफ हुए, अपने ज़ईफी की उम्र में अपने लड़के को उसने चाहा कि अपनी जगह पे अपने लड़के को अपनी सल्तनत का मालिक बना दूं। चुनांचे वो वजीरों को बुलाता है, वजीरों को बुला करके मशवरा करता है कि मेरे वजीरों, अब मैं ज़ईफ हो चुका हूँ, मैं इतने सारे कामों को अंजाम नहीं दे सकता हूँ, अब मैं हिम्मत हार रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। चुनांचे अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने लफ्ते जिगर को इस तख्त पे बैठाऊं। मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद वो बादशाह कहते हैं बैठा तो दूंगा, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरा लफ्ते जिगर कम गो है, बहुत ही कम बात करता है, बहुत कम वो अल्फाज इस्तेमाल करता है, ज्यादा वो बातचीत नहीं करता है। जबकि इस ओहदा के लिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला हो, बहुत ज्यादा बोलने वाला हो, बहुत ज्यादा फसीह बलीग और बयान करने वाला आदमी हो। लेकिन मेरा लड़का जो है वो ज्यादा बात करता नहीं है, इसकी वजह से मुझे खौफ है कि कहीं दिक्कत न पेश आए। चुनाव से वजीर बादशाह से मशवरा देते हैं कि बादशाह सलामत, आप ऐसा कीजिए, अपने लफ्ते जिगर को हम लोगों के हवाले कुछ दिन कर दीजिए, हम लोग इनको बात करने के ऊपर आमादा करेंगे, इनको बात करने के तरीका सिखाएंगे और इनको बात करने के ऊपर खूब खूब उभारने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से बादशाह सलामत वजीरों के हवाले अपने लफ्ते जिगर को कर देते हैं। उसके बाद वो वजीर बहुत कोशिश करता है कि बादशाह सलामत का लफ्ते जिगर इनसे बातचीत करे, लोगों के सामने खूब बातचीत किया करे, लेकिन वो शख्स, वो लड़का बातचीत बिल्कुल भी नहीं करता है। ऐसा महसूस होता है कि वो बात न करने का कसम खा रखा है, चुनांचे वो बात नहीं करता है। वजीर लोग सोचते हैं कि क्यों ना मुझे ऐसा करना चाहिए, जब हम लोग शिकारी के लिए जाएंगे इनको भी साथ ले चलेंगे, जब हम लोग शिकार को देखेंगे, शिकार को देखने के बाद हम लोग जब खुशी का इजहार करेंगे, अपने जज्बात का इजहार करेंगे, शिकार की तरफ दौड़ेंगे, चिल्लाएंगे, तो मुमकिन है अचानक अभी बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसे मौके से भी वो शख्स जब शिकारी के लिए जाता है, उस मौके से भी बादशाह सलामत का लड़का बोलने से आजिज रहता है, कोई बात नहीं बोलता है। सब लोग खुश होते हैं, सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन बादशाह सलामत का लड़का बात नहीं करता है। उसके बाद फिर शिकारी वजीर लोग जब दरख्त के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शिकारी वो चिड़िया जो चहचहा रही थी वो चहचहाना बंद कर दी है। सब आपस में, सब एक दूसरे के, सब घोंसले के अंदर जाकर छुप गए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अचानक एक चिड़िया बोलता है, एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, जिसके नतीजे में शिकार अपना तीर निकालता है और उस तीर के जरिए उस चिड़िया का शिकार कर लेता है। वो तीर उस चिड़िया को जाकर जैसे ही लगता है, लगते ही वो चिड़िया नीचे की तरफ गिरता है। मेरे अजीज दोस्तों, बादशाह सलामत का वो लड़का वहां पे पहुंचता है, वजीर लोग खुश होते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं कि हमने शिकारी कर लिया
लिया, लेकिन बादशाह सलामत का लड़का उस चिड़िया के पास पहुंचता है, चिड़िया को हाथ में लेता है और कहता है कि ऐ चिड़िया, जैसे तुम्हारे साथ बहुत सारे चिड़ियों ने खामोशी इख्तियार किया था, बातचीत नहीं किया था, चहचहाई नहीं की, जिसके नतीजे में वो तमाम चिड़िया बच गई, तुमने जो आवाज लगाई, तुमने जो बोला, उस बोलने के नतीजे में आज तुम्हारी मौत आई। मेरे अजीज दोस्तों, मालूम ये चला कि कम बोलने के अंदर में नजात है, कम बातचीत करने के अंदर में नजात है। अगर कोई शख्स ज्यादा बातचीत करता है, खामखा कुछ न कुछ बोलता रहता है, मेरे अजीज दोस्तों, ऐसे शख्स की गिरफ्त दुनिया के अंदर में भी लोग करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको गिरफ्त में लाते हैं और आखिरत में भी ऐसे लोगों के लिए सजा है। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए जरूरत है इस बात की कि अपनी जुबान को सही जगहों पर इस्तेमाल करें, अच्छी बातों के अंदर इस्तेमाल करें, कुरान की तिलावत के अंदर इस्तेमाल करें, जिक्र अस्कार के अंदर इस्तेमाल करें। अगर इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मेरे अजीज दोस्तों, ये दिक्कत की बात है, हमारे लिए खसारे की बात है। एक खातून थी, एक खातून को जब ये आयत सुनाई दिया, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि कोई शख्स जब जुबान से कोई बात को इस्तेमाल करता है तो उस बात को फरिश्ते लिख लेते हैं, क्योंकि हर इंसान के साथ फरिश्ते मुकर्रर है, निगरां मुकर्रर है, जो उनकी बातों को लिख लेते हैं। जैसे ही ये खातून को पता लगता है, वो खातून सोचने लगती है कि कहीं मेरी जुबान से कोई ऐसी बात न निकल जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे गिरफ्त में ले आए और मैं जहन्नम का मुस्तहिक बन जाऊं। चुनांचे वो खातून अपनी जिंदगी के तमाम उमूर को कुरान के अंदर तलाश करने लगती है और नतीजा यहाँ तक पहुँचता है कि वो औरत हर बात को, हर सवाल के जवाब को पुरानी आयत से देती है। अगर उसे खाने की जरूरत हो, पुरानी आयत के जरिए लोगों से खाना तलब करते हैं। उसे किसी भी चीज की जरूरत होती है, उस जरूरत के अंदर अपनी बातों को अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो आम जुबान में वो बात नहीं करते हैं, बल्कि कुरान की आयत के जरिए बात करते हैं, कुरान की आयत के जरिए सवालों का जवाब देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, होना यही चाहिए कि हर इंसान अपनी जुबानों से अच्छी बात करे। कुछ लोगों के दरमियान जब बैठे, दरमियान में बैठने के बाद भी अगर उनसे अच्छी बातें हो सकती हो तो अच्छी बात करे, वरना खामोशी इख्तियार करे। मीटिंग और पंचायती होती है, उसके दरमियान भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं सबसे ज्यादा बोलूं, मैं सबसे ज्यादा काबिल हूँ, मैं सबसे ज्यादा बुलंद आवाज करूं, मैं सबसे ज्यादा काबिल हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, ये काबिलियत की दलील नहीं है। काबिलियत की दलील तो ये है कि आप खामोशी के साथ कोई ऐसा फैसला निकाले, ऐसी बात निकाले जिस बात की वजह से तमाम लोग मुतासिर हो, तमाम लोग खुश हो जाए, तमाम का फैसला हल हो जाए। न ये कि आप अपनी ऐसी बात रखें जिस बात के नतीजे में तमाम मीटिंग और मशवरे के अंदर दहम और बरहम पैदा हो जाए, आपस में वो मीटिंग और जो मशवरा होता है वो दहम बरहम हो जाए। मीटिंग और मशवरा का जो तरीका होता है उस तरीके के मुताबिक करना चाहिए, उसके अंदर भी एक एक लफ्ज, एक एक बात सोच समझ करके बोलना चाहिए। यही बेहतर है, यही उस इंसान के लिए काबिलियत की दलील है, वरना उसके लिए कोई ऐसी काबिलियत और कमाल की दलील नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको अपनी जुबान की खूब हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन।